The future of the state and our country is in the hands of the youths. A new generation represents new opportunity of newer ideas and new developments. And to make sure that this generation do not think of clerical jobs as the only means of livelihood, the Arunachal Photography Club organized a 4-day eco-adventure cum awareness camp in the wilderness of Anjal district, where notably a large chunk of youths have fallen prey to opium. Last October, I was here. I was the expedition leader for organizing expedition leader for Arunachal Pradesh Police. They were celebrating their 50 years, so they wanted to go on an expedition. So I proposed many other places all across the Arunachal, but this one they choose because there is one forest border called Hood Valley, which is unguarded, and it's belonged to one single village called Kamlat. I was there. That's when I met these porter boys, who are like a horse in the mountain, you know. They could carry 50 kilo on their back and walk, just run up the mountain. So we were up till 4,100 meters, you know, that was the highest point we went. And they were very tough. Then I realized, why is so much of youth together in a village, you know? What's the reason? Then as day goes by, you know, evening, I would ask them, what you have done, what's your education? So they said almost 7 out of 10 were graduate. Couple of them were APCS, you know, twice they tried, they couldn't clear interview, and still preparing. They were there, I mean, no hesitations, nothing. Where this area is known for, you know, more opium-based culture, you know, cultivation things. As you can see on your way up, you don't see much of a paddy field or any other cultivations or horticulture or agriculture. So they're mostly, you know, into opium cultivation thing. So, and they were not frustrated in a way. And I saw them, they said, oh, हम तो पढ़ लिया, आगे क्या करेगा मालूम नहीं है. अभी कभी कभी आर्मी का पोर्टर बन जाता है, पेट्रोलिंग में जाता है, खाना बुकता है, ऐसे करके. So how much you get? So for them it's good enough money. Clearing road, first they go, you know. So then I realized, you know, so I narrated the story, you know, there is a place where so beautiful, the place is coming up as a very good tourist destination. And as you know, Arunachal is, you know, really developing in terms of infrastructure. Roads are getting better in the last couple of years, you know. And of course, once the road gets better, people will start coming in because Arunachal is the last most ultimate and least visited Himalayan state of India. So I shared this thought with them. I said, you know, such a poor conditions they have. They don't regret where they are, but you know, I feel bad about them. So I said, क्यों नहीं हम वहाँ कुछ करें? And again, with the same time, you know, we wanted to make it more apolitical, you know, more concentrated towards nurturing them, telling them. So that's how the wider idea came up, and we are here. One thing that I have noticed is that the theme of conservation has been given a lot of importance. So do you think that conservation is directly or indirectly related to the future of this generation? Yeah, definitely, because see, Arunachal, we still say, last evening one of our resource person, Dr. Yamcha, has said, you know, 51% of forest is covered, and it is under community forest, which you are there. So, I see the community in Arunachal, community owns the land. So, in that manner, when you see that, you know, if they conserve, they have lots of resources. Like Kaziranga, for instance, one rhinoceros feeds lakhs of people, just one rhinoceros. So is Ranthambore. One tiger feeds so many people right from Delhi all across the whole globe. Benefits out of a tiger in Ranthambore. So same here, Mismi rain bubbler. So bird variety is very rich, bird biodiversity is very rich in Arunachal. So one Mismi rain bubbler, which is endemic to Mismi Hills in Roing area, you know, when you go to Mayudia in between. So people come for that. So wildlife has a potential. You have lots of local boys who come up and turn into a birding guide. So preservation and conservation definitely bring them more financial independence than hunting, killing and destroying the forest would bring them. The theme of the camp is Nurture the Youths, Secure the Future. The participants belonging from various tribes of Lohit and Anjal districts attended the camp. Focusing on the conservation of wildlife and promotion of tourism in Arunachal Pradesh, the participants got the chance to meet renowned personalities such as Research Officer Tajum Yomcha, Mount Everester Taka Tamut, and angling expert John Panye, etc., and learn from them. People
from outside the state. They come to Arunachal just for having a glimpse of these rare and endangered birds which are found only in Arunachal. तो ऐसे टाइप का भी है. उसमें क्या अपॉर्चुनिटी जनरेट होता है, हमारा जो लोकल्स है, लोकल लड़का लोग है, जो हमारा ये अपकमिंग जो यूथ लोग के लिए एक अपॉर्चुनिटी होता है कि बर्ड गाइड बनने का, या एज ए टूर ऑपरेटर, बर्ड टूर ऑपरेटर होने का एक अपॉर्चुनिटी होता है. आप देखिए जब ये सब बर्ड गाइड या बर्ड टूरिज़्म हो के जब आपका पास लोग आना शुरू करेगा आपके एरिया में आना शुरू करेगा, ऑटोमेटिकली माने इट इज़ लाइक ये एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड टू एवरीथिंग वाला एक वो रहता है, सब्जेक्ट रहता है. फॉर एग्जांपल एवन टूरिस्ट कम जस्ट आपको एक चिड़िया देखने के लिए, तो एक किसी के होम स्टे में बैठ जाएगा, या उसी होम स्टे से एक टूर गाइड लेके वो चलेगा. तो ऐसे टाइप का अपॉर्चुनिटी होता है जहाँ में मैंने पर डे के हिसाब से लोग अभी कमाना शुरू करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल एक टूर गाइड जो आपका दे अर्न ₹5,500 ए डे. तो आप सोचिए अगर आपको 10 दिन में आपको 10 टूरिस्ट घुमाना, उनसे आपका कितना सारा इनकम जनरेशन होने का चांसेस है. सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स जो हम अपना जो फ्लोरा हमारा फौना इसको हम कंजर्व करके एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने का हमारा अपॉर्चुनिटी रहता है हमारे यूथ के लिए. सो दिस आर द काइंड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज विच वी मस्ट लुक इनटू फॉर आवर फ्यूचर, ये बाय द फ्यूचर जनरेशन एंड आवर लोकल यूथ. So this is what I would like to say about like why we need to conserve or protect our wildlife. ये अरुणाचल जो फोटोग्राफी क्लब है, ये इवेंट जो यूथ्स के लिए जो एक्सपोजर कम जो एडवेंचर कैंप इन्होंने ये सेटअप किया या इन्होंने जो अभी ऑर्गेनाइज़ किया हुआ, इट इज़ वन ऑफ ए काइंड इन अरुणाचल. इट्स ए वेरी गुड प्रोग्राम विच दे हैव अंडरटुक. बिकॉज जो हमारा यूथ है इन्हीं के थ्रू हमारा जो अरुणाचल का आज का जो फ्यूचर, हम का जो फ्लोरा एंड फौना ये सब इनको माने बचाने का काम यही यूथ लोग करेंगे फ्यूचर के लिए. तो आज का दिन में इनको जो एक्सपोजर दिया थ्रू जो ट्रेनिंग भी हो, जो बर्ड गाइड, जो हमारा फ्यूचर जो हमारा लाइवलीहुड जनरेशन का जो बात अभी यहाँ इस कैम्प में अभी करेंगे, तो उस हिसाब से मैंने लाइक जो एपीसी ने जो प्रोग्राम रखा अरुणाचल फोटोग्राफी क्लब वालों ने, इट इज़ वन ऑफ ए काइंड. और ये प्रोग्राम ऐसे फ्यूचर में भी होते रहना चाहिए. जी, ये एक चीज़ तो इंस्पायर तो देखिए हम लोग भी खुद आया था, खुद को भी पहले ये मेंटली तैयार करके आना पड़ेगा एडवेंचर में आने के लिए. और यहाँ पे इतना अच्छा स्कोप है ये अंजाव डिस्ट्रिक्ट में, एडवेंचर जहाँ में भी कर सकता है. जैसे रिवर का है और माउंटेन का है, इवन एरो एडवेंचर भी कर सकता है. तो यूथ अगर अपना को बदलेगा, ये जगह से कहीं और आगे जाएगा, निकल के दुनिया को देखेगा सोचने से, एडवेंचर में जुड़ना ही यहाँ के बेस्ट होगा. जैसे ड्रॉप आउट कुछ है, कोई पढ़ाई करके, आजकल तो गवर्नमेंट जॉब सिर्फ में करके कितना आदमी गवर्नमेंट जॉब कर सकता है लाइफ में, इतना ये में छोटा डिस्ट्रिक्ट में हर कोई तो नहीं कर सकता है. लेकिन हर कोई को जीना है, हर कोई को अर्न करना है, लाइफ कैरी ऑन करना है. तो कहीं ना कहीं देखने से ये एडवेंचर इसका मोटिव बन सकता है, यहाँ का जो माध्यम बन सकता है जिससे वो लोग आगे बढ़ सकता है. और यूथ भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वो लोग फिजिकली बहुत अच्छा है. तो यहाँ अगर वो लोग आगे आने से ये सिर्फ जगह के लिए नहीं होगा, अरुणाचल को एक रेवेन्यू अर्निंग करने में मदद बहुत करेगा. स्पेशली टूरिज्म पर ये एडवेंचर टूरिज्म में, ये बर्ड वाचिंग, ये बटरफ्लाई में, आपका ये ट्रैकिंग में. तो हम लोग जो कोर्स किया है, कोर्स करने के बाद तो अभी बस ये लोग को कुछ किसी को प्रमोट करके किसी को मोटिवेट कर पाता है, तो इसलिए यहाँ में आया है. एपीसी जो वो लोग कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स, बहुत अच्छे से मोटिव क्रिएटिव आइडिया है ये ना. शुरुआत में मैं भी ऐसे यूथ एडवेंचर कैंप एक चिंपू में छोटा सा हुआ था. तो उस समय निमा लमा और मारासार दोनों इंस्ट्रक्टर था, हम भी ऐसे ही गया था.
देखने के लिए कि एडवेंचर क्या होता है। तो आज देखने का बाद आज मैं जितना मौका में है ये इस तरह का इवेंट से ही हुआ है। तो मैं सोचता हूँ कि ज़रूर होगा कोई किसी ने आएगा यहाँ से, एटलीस्ट सब तो नहीं आ सकता है 30 में से एटलीस्ट 4-5 आने से भी। देखिए हम लोग और ये भी कोशिश करता है कि कॉम्पिटिटिव करना पड़ेगा। ये है कोई सीखने वाला अभी यहाँ में 1-2 निकलना पड़ेगा, 1-2 का बाद 10 जैसे होगा। जब कॉम्पिटिटिव होता है, अरे वो कर रहा है वो कर रहा है, तो सर्विस अच्छा प्रोवाइड होता है, हॉस्पिटलिटी अच्छा हो जाता है और जो सर्विस जो बेस्ट क्वालिटी का हो जाता है। हम अच्छा देगा तो हम ही मेरा पास आएगा। तो ये लोग को वही कोशिश कर रहा है कि निकलो यहाँ से कोई और। तो हम लोग अरुणाचल में जितना हो सकेगा, और अरुणाचल का यूथ तो हर जगह में अभी इस तरह का कैंप एटलीस्ट लगाना चाहिए, तो ताकि कोई देख के आए। ये देखिए इको एडवेंचर कैंप, ये 4 दिन का है और इसमें एक चीज़ है, जस्ट अवेयरनेस, मेन तो मोटिव तो अवेयरनेस दिखाना है। देखिए आजकल निमास में बहुत ट्रेनिंग होता है इसका जो एडवेंचर का, तो डायरेक्टर ऑफ यूथ अफेयर्स स्पॉन्सर भी करता है और आपका ये डायरेक्टर ऑफ टूरिज्म भी स्पॉन्सर करता है। एडवेंचर में जिस कोर्स में जाएगा उसी कोर्स में जो नॉमिनल फ़ी है वो ये करता है, वो लोग मैनेज कर देता है। तो बस यहाँ में दिखाना है कि राफ्टिंग क्या है, एक्चुअली राफ्टिंग से क्या कर सकता है। राफ्टिंग से आप अगर राफ्टिंग गाइड होगा तो पर डे आपका अर्न एटलीस्ट 5 to 6,000 पड़ेगा, 10,000 पड़ेगा। तो बाहर से कोई क्लाइंट आएगा तो एटलीस्ट वहाँ में यहाँ पे राफ्टिंग राफ्ट चला के बहुत हार्ड कुछ अर्न कर सकता है। तो और एक जैसे एंटरप्रेन्योर्स ये कर सकता है यहाँ में, जैसे राफ्टिंग का है, पैराग्लाइडिंग में टेंडम फ्लाई होता है, उसमें भी क्लाइंट को ले जाके ये करना होता है। और इसी ट्रैकिंग आजकल बहुत पॉपुलर है ट्रैकिंग ना। तो ट्रैकिंग में क्या होता है कि एक गाइड होता है और HF एल्टीट्यूड पोर्टर होता है और जो मतलब टेक्निकल आदमी जो कैंप सेटअप कर सकता है। तो इसमें बहुत ये है आजकल, इसमें बहुत वर्ल्ड वाइड एडवेंचर ये जो बहुत एक अच्छा स्कोप है। The participants began their day with early morning bird walk with scientist Yongcha, where they learned to identify different species of birds and plants and their uses. They were also engaged in team building games. The evening session saw the youths attend a couple of technical sessions where they got to learn in detail about conservation of flora and fauna and how it can lead to employment generation, the right ways of handling cameras, etc. The technical session also saw Everester Taka Tamut share his personal journey of struggles and failures before finally conquering the summit of Mount Everest. Tamut also encouraged the youths to pursue adventure sports as a profession. हम लोग ने बहुत कुछ सीखा है कि क्या पहले हम लोग चिड़िया लोग को देखते हैं, हम लोग को तो ऑफिशियली नाम ही नहीं पता है। चलो हम लोग चिड़िया देखते तो ओ हाँ ये चिड़िया है, अभी वो लोग आया सर लोग इस चिड़िया का क्या नाम होता है, इस प्लांट का क्या नाम होता है, बहुत कुछ सिखाया गया। अगर कर को कोई बाहर से आता है टूरिज़्म लोग पूछेगा इसको क्या बोलता है, फिर हम लोग नहीं बता सकेगा। तो वो सब सीख के हम लोग को बहुत अच्छा लगा। और टूरिज़्म किस तरह से बनाना चाहिए वो चीज़ भी सिखाया गया है हम लोग को, किस तरह से वो लोग को ट्रीट करना है, किस तरह से हम लोग का टूरिज़्म बढ़ेगा। हम लोग का इतना सुंदर जगह है लेकिन हम लोग इतना वो कुछ करता नहीं, लेकिन वो चीज़ के लोग मैम लोग सर लोग सब लोग ने सिखाया हम लोग को। तो हम लोग वो चीज़ सिखाए और हम लोग कोशिश करेगा कि हम लोग अपना टूरिज़्म और बढ़ाए। और हम लोग यूथ लोग को भी सब लोग को बोलेगा कि यहाँ बहुत अच्छा है और सिखाया हम लोग को वहाँ पे। और हम लोग बाकी दोस्त लोग को बहनों को भी बताएगा कि हम लोग को क्या करना चाहिए। और एक ये अंजाव डिस्ट्रिक्ट का एक इश्यू ये है कि यहाँ पे ओपियम कंज्यूम बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जो आपको क्या लगता है कि ये जो एक्चुअली अंजाव का यूथ लोग को इफेक्ट पड़ता है क्या? हाँ, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और ये जो अभी अंजाव का यूथ लोग कोशिश कर रहा है
कि उसको ख़त्म करने के लिए इस कैंपेन होता है। लेकिन अभी तक भी पूरा नहीं, 50% भी ख़त्म नहीं हुआ है अभी तक। लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं उसको ख़त्म करने। पहले ऐसा नहीं कि हम लोग भी वो जो खेती नहीं करता था उसका, लेकिन हम लोग भी करता था। लेकिन अभी हम लोग भी हो गया, हम लोग का दोस्त लोग भी 3-4 साल हुआ हम लोग वो खेती करना ही छोड़ दिया। इसलिए हम लोग छोटा कुछ कर लेता है गुजारा के लिए। अभी बाकी बहुत लोग सीख रहा है। अभी हम लोग का गाँव में बहुत सारा होता था, लेकिन आजकल वो जो खेती करना ही बंद कर दिया। इस बार पुलिस लोग ने भी बहुत साथ दिया है। बहुत सारा का ऐसे खेती जो वो पानी निकलने के बाद काट दिया गया है ना, तो हम लोग को भी शुक्रिया कहना चाहता है। हम लोग का पुराना ज़माना का आदमी लोग, मम्मी लोग, पापा लोग बोलता है कि हम लोग पानी का सहारा ही जीता है, क्योंकि वो लोग को आइडिया नहीं है कि बाकी कहाँ कमाएगा, क्योंकि हम लोग इसी से कमा के परिवार चलाता है ना, इसलिए। लेकिन अभी यूथ लोग बहुत कुछ सीख रहा है, इसको छोड़ना चाहिए। हम लोग किस तरह से पैसा कमाना चाहिए, और यहाँ पर भी बहुत अच्छा सिखाया गया कि हम लोग किस तरह से पैसा कमा सकता है ना। इसलिए अभी बहुत ज़्यादा ज़्यादा नहीं, ख़त्म हो रहा है अभी, थोड़ा करके अभी टोटली ख़त्म ही हो जाएगा। यूथ लोग इसके लिए बहुत काम कर रहा है। आमसू लोग हो गए, देश लोग भी काफ़ी काम कर रहे हैं इसके लिए। हम लोग ये सीखा कि फर्स्ट में तो जो बोला अभी ट्रैकिंग क्या क्या भी होता है, तो ये सब भी सिखाया। उसके बाद जैसे राफ्टिंग, तो उस दिन भी हम लोग राफ्टिंग भी किए। उसमें ऐसे ना फर्स्ट में तो ऐसे डर था राफ्टिंग में भी, हमें कुछ आइडिया नहीं था, कभी नहीं किया है। तो हम लोग का गाइड है एक मेयर लड़का, तो अभी नाम भी मुझे तो पता नहीं। तो फर्स्ट में डर था अभी कैसे करेगा, और उसने भी इतना अच्छा से गाइड किया ना हम लोग को, तो उसमें इतना वो लोग गाइड किया तो हम लोग का कॉन्फिडेंस बढ़ गया उसमें करने के लिए। फिर वो होने के बाद तो अभी जितना क्या था हम लोग राफ्टिंग कर लिया। तो राफ्टिंग करने के बाद ऐसे वहाँ पहुँचा, जहाँ तक पहुँचना था हमें, तो वहाँ पहुँचा तो अभी मज़ा नहीं है, थोड़ा और डिस्टेंस चले थे। अरे अभी हम लोग का और भी वो बढ़ गया, अभी इसको और करना है मुझे। तो आज भी हम लोग का था अगर करने के लिए राफ्टिंग के लिए, लेकिन आज बारिश का वजह से तो वो सब हो गया। और हम लोग का कल जितना भी रात को हम लोग का प्रेजेंटेशन में सर लोग ने बहुत चीज़ सिखाया। जैसे हम लोग का वो सर वाला माउंटेनियर सर जो अभी नाम भी पता नहीं मुझे भी अच्छा से, तो वो सर ने भी बहुत अच्छा से हम लोग का प्रेजेंटेशन में बताया। और उसका साथ हम लोग का रिसर्च ऑफिसर सर जो नमदफ़ा का, तो उनने भी हमको बहुत चीज़ अच्छे से सिखाया, ना बताया। चाहे हम लोग बीच में बोर तो हो भी सकता था, ऐसे चीज़ जो बहुत लेंदी था ना, तो उसका अंदर ना लेंदी था, लेकिन उन्होंने बहुत पॉइंट टू पॉइंट डायरेक्ट इतना अच्छा से बताया। उसमें हम लोग को बहुत चीज़ सीखने मिला जी। एक्चुअली हाँ, ये तो सही बात है कि ओपीएम की वजह से हम लोग का ऊपर इफेक्ट पड़ता है। ये आजकल ऐसे हो रहा है कि ज़्यादातर कोई ऐसे हो जाता है कि कुछ पढ़ाई कर रहा था पहले, तो उसके बाद कुछ साल में ऐसे नहीं पढ़ने का वजह से गांव में बैठ गया। उसके बाद हर कोई यूथ्स इंगेज हो जाता है ये सब चीज़ में, ओपीएम या कुछ। मगर अगर वो का पास कुछ करने के लिए नहीं है, अगर अभी मान लो मेरा पास भी कुछ नहीं है, अभी हम बस्ती में ऐसे बैठा हुआ है, तो मेरा पास कुछ करने के लिए काम धंधा नहीं है, तो ऐसे में कुछ ना कुछ में इंगेज हो जाता है। तो उसमें इंगेज होने के बाद ऐसे हो जाता है कि हम लोग ये तो शुरू कर दिया फर्स्ट में, तो हाँ ऐसे होता है कि थोड़ा हर जगह थोड़ा हो जाता है, ना मिल जाता है। बाद में उसको कंटिन्यू हो जाएगा, तो हम लोग एडिक्टेड हो जाएगा। तो एडिक्टेड होने के बाद हम लोग को चाहिए ऐसे वाला हो गया, तो वो होने के बाद तो कहाँ से लाएगा, ऐसे वाला कमाई भी नहीं है, और आदमी भी उसका वजह से लेजी हो जाता है बहुत। यहाँ से हम लोग बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि हम लोग कभी ऐसे तो कोई नहीं सिखाया है, तो ना हम लोग को तो इतना नहीं। अभी हम लोग यहाँ से सीख के जाएगा कि हम लोग ये फ़ोटो वगैरह ना कैमरा में हम लोग कैमरा कैसे फ़ोटो खींचना है, और सीनरी में कैसे जगह में खींचना है। और ये हमको नहीं पता था कि हम लोग खुद का मोबाइल में ही इतना अच्छा हम लोग सीनरी को लेके हम लोग खींच सकता है। लेकिन आज सर लोग ने बता दिया हम लोग को कि आप लोग ऐसे यूज़ करने से आप लोग का फ़ोन में ही है ना इतना अच्छा सा कैमरा, आप लोग अपना फ़ोन से भी खींच सकता है। ऐसे बोल के सर लोग ने बताया है, बहुत अच्छा लगा है। ओपीएम तो बहुत ख़राब है, और ये हम लोग देखता है ना, हम लोग का ही गांव में, हम लोग का ही बस्ती में इतना सारा लोग ओपीएम लेता है। पहले तो बुद्धा ऐसे और एज हो गया वो लोग लेता था, आजकल तो सब यूथ्स लोग, जवान लोग भी वो लोग से देख के या तो खुद से सीख के दोस्त आपस में दोस्त से बैठ के खा पी के वैसे में सब आजकल ओपीएम लेने लग गया है। ऐसे तो बहुत ख़राब है। आगे यूथ्स लोग के लिए ऐसे नहीं करने से ठीक है। इतना ऊपर से जो ओपीएम लेता है
इतना बीमार हो जाता है थोड़ा देर बाद। तो फिर ऐसे को ऐसे होता है कि ओपियम ले रहा है, फिर हम छोड़ देगा, मेडिकल जाके आता है, और उसका बाद फिर से वो लोग फिर घर पहुंचने का बाद मेडिकल थोड़ा दिन बैठेगा, घर पहुंचने के बाद फिर वो लोग वो कर देता है, फिर से पीने लग जाता है। इसलिए मैंने कितना तकलीफ़ हो रहा है, वो लोग को तकलीफ़ हो रहा है, वो लोग नहीं समझ रहा है। उसका बाद वो लोग ओल्ड एज वाला से ही देख के या तो यूथ आपस में देख के आपस में सीख रहा है, इसका कारण से मैंने बहुत प्रॉब्लम है। तो हम लोग यहाँ में आए 13 को आए था हम लोग, क्योंकि कैम्प तो 15 शुरू था, तो यहाँ में थोड़ा काम में था तो पहले आए हम लोग। तो इसका वजह से हम लोग पहले आना पड़ा, काम था बोल के। तो इसलिए हम लोग बहुत एक्साइटेड था ये चीज़ से। हम लोग को सिखाने आया इतना बड़ा आदमी इतना दूर से, है ना। तो सबसे पहले उसको एपी से को थैंक यू भी बोलना चाहता हूँ। तो हम लोग अभी बहुत चीज़ सीखा है वो सालों से, कैसे गाइड करना, कैसे बात करना किसी और से सालों से, और कैसे बिहेव करना चाहिए, किसी डिसिप्लिन में रहना है, बहुत चीज़ सीखा है। तो अलग अलग सिखाए नहीं सिखाए वो तो मालूम नहीं, पर हमने बहुत ऑब्जर्व किया कि डिसिप्लिन में रहना है और वो लोग को अच्छे से बातचीत करना है। और हम लोग को सिखाए, हम लोग को जैसे कि फोटोग्राफी सिखाए और राफ्टिंग सिखाए, पर हम राफ्टिंग नहीं कर पाए। आज करेंगे बोले तो बारिश हो गया, तो हम लोग वो कुछ नहीं, फिर अलग अलग तो सिखाए। तो ये सब चीज़ से बहुत आदमी लोग को फ़ायदा मिला होगा, एक्सपेक्ट करते हैं, और मिलना भी चाहिए, क्योंकि इतना दूर से आए, इतना बड़ा साल आए तो ना। तो ये सब चीज़ के लिए आज यहाँ से जो भी ट्रेनिंग्स है 3 दिन में तो सीखेगा नहीं, तो 3 दिन में तो सीख के पूरा जाएगा नहीं। तो इसलिए यहाँ से एपीसी का भी और मेरा भी मन में यही है कि जो भी यहाँ से कुछ भी अगर जो भी ट्रेनिंग्स है उसमें अगर इंटरेस्ट दिखा रहा है तो इसको हम आगे नर्चर करेगा, उसको और एडवांस के लिए हम आगे भेजेगा फॉर मोर ट्रेनिंग्स ना, और फॉर ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म आने के लिए उसको आगे हम लोग ट्रेन करने के लिए भेजेगा। तो ये ट्रेनिंग से बहुत मैंने ज़्यादा लाभ मिलने वाला, क्योंकि आप जानते हैं हम लोग का डिस्ट्रिक्ट जो है बहुत ही ओपियम एडिक्शन के तरफ में यूथ जो है ना अट्रैक्ट हो रहा है। तो इन सब एक्टिविटीज़ से जो है लोगों को एक अच्छा एक पॉजिटिव चीज़ ना है, एक अच्छा एक अपना करियर मेकिंग ना टूरिज़्म में कैसे खुद को एंगेज रखना है, अपना लाइवलीहुड कैसे आगे जाके खुद को कैसे चलाना है, एक कंपनी ऑन कैसे करना है। आप कल को टूर ऑपरेटर बनेगा ना, आप कैसे काम करना है, टूर गाइड बनेगा, बर्ड गाइड ना, सब बाहर से आ रहा है, तो हम लोग का लड़का क्यों नहीं कर सकता। तो यही है मेन मुद्दा कि हम लोग का यूथ को एम्पावरमेंट ना टूरिज़्म का मतलब स्कोप को लेकर के ना, तो बेसिकली यही है। This event very beautifully wove together the concepts of conservation, preservation of culture, promotion of nature tourism to employment generation in the state. The members of Arunachal Photography Club, who belong to various backgrounds, came together through a single interest of photography and enthusiastically worked with the youths as their way of giving back to the community. तो एग्जैक्टली ऐसा हुआ कि हम लोग फ़ोटो वॉक से शुरू किए थे 2014 को लेके। तो उसमें लाइक माइंडेड पीपल जो है हम लोग शेयर किया फेसबुक में, फेसबुक से होके हम लोगों ने फॉर्मेशन करने के लिए पहले रजिस्टर्ड करने से पहले हम लोगों ने एक एग्जीबिशन किया था 2015 में स्टेट्यूट डे को लेके ईटानगर में। तो वहाँ से फ़ोटो एग्जीबिशन होके शुरू किया। तो हम लोगों ने लाइक माइंडेड पीपल जैसे मैंने पहले बताया, तो हम लोग असेंबल किए कि नहीं एक सोसाइटी रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, NGOs रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। कोई भी चीज़ अरुणाचल का आप ऑफिशियली कवर करना चाहेंगे तो एक क्लब ज्वाइन करना होगा। तो हम लोगों ने ये रजिस्टर किया 2017 को। तो सर आप लोग की जो इस क्लब में पीपल फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, सबका बैकग्राउंड अलग अलग है, उन सब लोग साथ में मिलके काम करते हैं। तो इसमें आप लोग का जो मेन मोटो कुछ रहा है क्या? मोटो तो एग्जैक्टली हम लोग कहेंगे तो वही अरुणाचल को प्रमोट करना चाहते हैं, वह टूरिज़्म के थ्रू। तो अरुणाचल एक टूरिज़्म हॉटस्पॉट है। तो हम लोग इस अरुणाचल को लेके बहुत वो है पॉजिटिव है कि टूरिज़्म के थ्रू, और हमारे जो स्टूडेंट हैं यंग माइंड्स, हर कोई चाहता है, पेरेंट्स चाहता है कि मेरे बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। और हम लोगों का जो माइंड लाइक माइंडेड पीपल जो डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, वो लोग भी चाहते हैं कि नहीं, कोई नहीं होता कि जिसका लग अच्छा होता है, जिसका पढ़ाई अच्छा होता है वो एजुकेशन में जाए, किसी का लग अच्छा है तो वो एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि यंग माइंड को लेके कि इसका टूरिज़्म में ही माइंडसेट सेटअप हो,
और स्पेशली जो जगह जगह में हम लोग जो विजिट करते हैं उसमें ये अवेयरनेस देते हैं कि जॉब इज़ नॉट द ओनली सक्सेस ना, बाकी चीज़ भी है हमारे यहाँ पे कि टूरिज़्म को लेके आप या जैसे बताए कल सर हमारे प्रेसिडेंट सर ने बताया कि आपका ये होम स्टे है, होम स्टे लेके कर सकते हैं, उसमें एंगेज हो सकता है दूसरा जगह में जाने से पहले, ड्रग्स वगैरह में जाने से, अल्कोहल होने से पहले या प्लेइंग कार्ड्स करने से पहले, तो आप टूरिज़्म में क्यों ट्राई नहीं कर सकते। तो वही मोटिव्स को लेके हम लोग अंजौर डिस्ट्रिक्ट आए हैं। एपीसी टीम को थैंक यू बोलना चाहता है कि मुझे यहाँ पे एडवेंचर रिसोर्स पर्सन बना के लेके आया है, ताकि मैं भी यूथ को, और हम लोग का जो मोटिव होता है घूमने से एकदम हम लोग ये होता है हर तरह से घूमने से एडवेंचर ये करता है। तो यहाँ पे आके बहुत खुशी हुआ है। समदुल यहाँ अंजौर डिस्ट्रिक्ट में बहुत आते रहता है, लेकिन ये समदुल पहली बार देखा है, इसलिए एपीसीसी टीम को मेरा तरफ से दिल से थैंक यू। थैंक यू एपीसी, थैंक यू एपीसी, थैंक यू एपीसी, थैंक यू एपीसी, थैंक यू एपीसी।